محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کا ضامن ہوں، وہ جو لڑائی جھگڑا ترک کر دے اگرچہ وہ حق پر ہو، اور جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ کہ وہ کسی مذاق ہی میں ہو، اور جنت کی بلندی میں ایک گھر کا اس شخص کے لیے ضامن ہے جو خوش اخلاق ہو۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ محکمہ بلدی کی اجازت کے بنا بودھن میں ایک مجسمے کی تنصیب پر دو فرقوں کے مابین تنازع، پولیس پر پتھراؤ، پولیس میں کرفیو نافذ، کمشنر آف پولیس کیا ناگراجو۔ بانسواڑہ و ورنی منڈل کے دیگر موضوعات میں حال ہی میں فوت ہونے والے افراد خاندان سے ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچرام سرینواس ریڈی نے ملاقات کرتے ہوئے دیا پرسہ۔ چیف منسٹر KCR کی کامیاب ترین قیادت میں روب عمل میں لائے جانے والے ترقیاتی اسکیموں سے متاثر ہو کر ایرگٹلا منڈل سے تعلق رکھنے والے BJP و کانگریس پارٹی سے وابستہ قائدین نے ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کے ہاتھوں TRS پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ بالکنڈہ حلقے میں ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی نے دورہ کرتے ہوئے جملہ 4 کروڑ روپے مالیاتی رقم پر مبنی ترقیاتی کاموں کا رکھا سنگ بنیاد۔ ضلع نظام آباد کے اہل امیدوار پولیس کانسٹیبل و SI مفت تربیت سے استفادہ کرنے کی کمشنر آف پولیس کیا ناگراجو نے کی تاکید۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ بودھن میں راتوں رات شیواجی کے مجسمے کی تنصیب، اعتراض کے بعد حالات کشیدہ، پولیس کی جانب سے آنسو گیس کا استعمال، دفعہ 144، حالات قابو میں۔ نظام آباد ضلع کے بودھن ٹاؤن میں راتوں رات چھترپتی شیواجی مہاراج کے مجسمے کی تنصیب کے بعد دو فرقوں کے درمیان تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ شیوا سینا اور BJP کی جانب سے اس مجسمے کی تنصیب عمل میں لائی گئی۔ اس طرح راتوں رات امبیڈکر چوک کے قریب نصب کیے گئے اس مجسمے کے خلاف ایک گروپ نے اعتراض کیا اور مجسمے کو اس مقام سے ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ اس اطلاع کی عام ہوتے ہی دونوں فرقوں کے قائدین، نوجوانوں اور مقامی عوام کی بڑی تعداد مذکورہ مقام پر جمع ہونے لگی، جس کے باعث حالات مزید خراب ہو گئے اور پولیس کی بھاری جمعیت نے جائے مقام پر پہنچ کر دونوں گروپس کو سمجھایا۔ بودھن میں اس طرح راتوں رات مجسمے کی تنصیب سے تنازع پیدا ہو گیا ہے، جس پر اقلیتی فرقے کے لوگوں نے اعتراض کیا کہ اس طرح مجسمہ نصب کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے۔ اس موقع پر حالات کو بے قابو ہونے سے بچانے کے لیے پولیس نے مداخلت کی اور کسی بھی قسم کے واقعے کو روکنے کی غرض سے بھاری پولیس بندوبست کیا گیا ہے۔ پولیس کی مداخلت کے باوجود دونوں گروپ اپنی اپنی جگہ بضد ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس موقع پر ایک گروپ کے چند احتجاجیوں کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ بھی کیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس مجسمے کے قریب ریلوے ٹریک بھی ہے، جہاں سے پتھر پولیس پر پھینکنے لگے۔ BJP قائدین کا کہنا ہے کہ مذکورہ مقام سے مجسمہ ہٹانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
పర్మిషన్ ఇంకా కాలేదు. మున్సిపల్లో తీర్మానం ఇది మన కార్పొరేషన్లో మున్సిపల్ ఏమంటారు అది మున్సిపాలిటీలో తీర్మానం చేసింది. అది ప్రాసెస్ ఉంటుంది. అది కలెక్టర్ గారికి పోవాలి, అక్కడి నుండి మళ్ళీ ఆర్టీఓ నుండి ఆర్టీఓ గారు కలెక్టర్ పంపించి మళ్ళీ ప్రిన్సిపాల్ అక్కడికి పంపించి పర్మిషన్ తీసుకొని రావాలి. ఆ పర్మిషన్ వచ్చే వరకు ఆగండి అని చెప్పారు. రెవెన్యూ అధికారులు చెప్పారు, మేము కూడా చెప్పినాం, కలెక్టర్ గారు కూడా చెప్పారు. ఆయన కూడా వినకుండా రాత్రి తెచ్చి లేని ఒక కమోషన్ ఏర్పాటు చేశారు. ఇక్కడ అందరికీ మనోభావాలు దెబ్బతింటున్నాయి అంటున్నారు, కానీ అది అట్లా ఏం లేదు. లీగల్గా రండి, లీగల్గా పర్మిషన్ పెట్టుకోండి, మేమే అన్ని దగ్గర ఉండి బందోబస్తులు కూడా చేస్తామని చెప్పినాం. 2 దఫాల మీటింగ్ అయింది. చెప్పాను, మీరు ఏమైనా ఉంటే ఒక 10 మంది రండి మాట్లాడండి మాతోనంటే వినట్లేదు. మేము ఇక్కడనే ఉంటాం, ఇక్కడనే కూర్చుంటామని అంటున్నారు. స్టోన్ పెల్టింగ్ అయింది కాబట్టి మనం లాఠీ చార్జ్ యూజ్ చేస్తున్నాం అంతే. ఎవరికి కూడా కొట్టలేదు, వాళ్ళే కొట్టారు రాళ్ళతో. మా వాళ్ళ ఒక కానిస్టేబుల్ కొడుతుంటే మేము పోవాల్సి వచ్చింది. కేసులు కడతామండి, ప్రివెంట్ అరెస్టులు చేస్తాం. 144 ఉన్నదండి. అవుటర్స్ రాకు ఎవరు రాకూడదు. 144 ఉన్నది. ఎవరు వచ్చినా కూడా అరెస్ట్. రోడ్లకు అన్ని పికెట్లు వేసి క్లోజ్ చేస్తాం. కానిస్టేబుల్ అయితే పంపిస్తున్నాం, చూడాలి. वजीर आला KCR की जानिब से हिंदुस्तानी दस्तूर को तब्दील करने की बात पर माजिदा कृष्णा MRPS तंजीम की जानिब से सख्त मजम्मत का इजहार। 9 अप्रैल को चलो हैदराबाद प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए अवाम से की अपील। माजिदा कृष्णा MRPS ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से वज़ीर आला KCR की जानिब से हालिया दिनों में हिंदुस्तान दस्तूर तब्दील करने की बात कही गई थी। इसकी मुखालिफत करते हुए रियासत तेलंगाना में एक एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। इस ज़िमन में माजिदा कृष्णा MRPS ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ मुकामात के ओहदेदारान संगारेड्डी, कागज नगर, नवीपेट, नंदीपेट, निजामाबाद के जिम्मेदारों ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया कि हम दस्तूर को तब्दील करने की बात से सख्त मजम्मत करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर साहब का दस्तूर हमारे तबकात के लिए एक राहमल है। तमाम ममालिक के दस्तूर से हमारा दस्तूर है। इस ज़िमन में 9 अप्रैल को चलो हैदराबाद प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसका जिम्मेदारान MRPS कायदीन शेख इस्लामुद्दीन, रजी हैदर, भूषण, गंगाधर और शहर निजामाबाद के जिम्मेदार शेख हुसैन अनवर खान ने तमाम अवाम से इस प्रोग्राम में शिरकत की अपील की। जनाब CM KCR साहब ने दस्तूर हिंद को बदलने के लिए कहा। जो दस्तूर अपने इंडिया का दस्तूर है, वैसा दस्तूर दुनिया के कोई देश में भी नहीं है। दस्तूर बहुत अच्छा है, मगर रूलर्स बहुत ख़राब है। जितने भी CMs हुए या आंध्र प्रदेश में या तेलंगाना में, और जितने भी PMs गुजरे, वो दस्तूर में से 5% भी इम्प्लीमेंट। इसमें फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, पूरे राइट्स है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन अगर गया तो फिर राजचरी का व्यवस्था होता, किंग्स का व्यवस्था होता। जो किंग बोलता वही कॉन्स्टिट्यूशन है, वही आर्टिकल है, वही सेक्शन रहता। इसलिए इसको हम संभालने के लिए मंदा कृष्णा मादिगा साहब अप्रैल 9 को चलो हैदराबाद टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मीटिंग लगाए। उसको सक्सेस करने के लिए आप लोग सब वहाँ आने के लिए आप लोगों सबसे गुजारिश है। तेलंगाना के मुस्लिम और दलित में एक किस्म का बेचैनी फैले हुआ है कि दस्तूर और कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको जो फंडामेंटल राइट्स बुनियादी हुकूक दिए हैं, वो हुकूक हर शहरी को हासिल है। और उन फंडामेंटल राइट्स के ज़रिए पॉलिटिकल लीडर वोट हासिल करते हैं, वोट देने का हक़ है, हुकूमतें बनाते हैं, हुकूमत बनाने के बाद दस्तूर को बदलने की बात करते हैं। तो आज हम यहाँ पर तमाम ही दलित और मुस्लिम मिलकर जो लोग भी भारत में दस्तूर को बदलने का बात करेंगे, उनको हम कंडम करेंगे और दोबारा बार इख्तिदार पे आने नहीं देंगे। दोबारा बार उनको जो सो मतलब सरकार बनाने नहीं देंगे। मुसलमानों से शाहदनगर के जलसे में ये वादा किया गया था कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना बनाने के बाद 100 दिन के अंदर 12% रिजर्वेशन हासिल करेंगे। मैं मोहम्मद अनवर ख़ान सब प्लान 12% रिजर्वेशन एक्शन कमेटी डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर इस बात का मुतालबा करता हूँ कि ऐसे बयानात दस्तूर को बदलने के ना दिए जाएं, वरना आवाम इसका सख्ती से నోటీస్ లేకి ఆ మాటను గుర్తు తీసుకొస్తున్నారు. అందుకే మిమ్మల్ని మార్చడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మహాజన సోషలిస్ట్ పార్టీ, ఆల్ ఇండియా ముస్లిం రిజర్వేషన్ పోరాట సమితి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తిరుగుతూ అటు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలను ఏకం చేస్తున్న మందకృష్ణ మాదిక్ గారు, ప్రొఫెసర్ కోదండరామ్ గారు, అదేవిధంగా అన్ని కుల సంఘాలు, ఇటు ముస్లిం
నాయకులు కూడా మేము రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏకం చేసి ఏప్రిల్ 9వ తేదీన बज़्म शायरी का नेशनल हाई स्कूल निजामाबाद में अजीम शान कुल हिंद संजीदा व मज़ाहिया मुशायरा। फिर ये हुआ कि उसने गले से लगा लिया, वो थक चुका था मेरी मोहब्बत के सामने। सुलग उठेंगे जाने कितने दिल हसद की आग से, अगर हवा के रूबरू मेरा चिराग जल गया। शहर निजामाबाद में पिछले 12 सालों से बज़्म शायरी अपनी शायरी व अदबी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसके बानी व सदर डॉक्टर रज़ी शत्तारी ने अब तक 200 ऑनलाइन मुशायरों का कामयाबी के साथ इनेकाद करवाया है। डॉक्टर रज़ी शत्तारी बज़्म शायरी से वाबस्ता शोरा का तारुफ भी लिखकर इसे मुल्क के मुख्तलिफ अखबारात, रसाइल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शाये करवा कर उर्दू कलमकारों की पजीराई करते हैं। 200वें तरही मुशायरे के ज़िमन में नेशनल हाई स्कूल किला रोड निजामाबाद में बतारीख 24 मार्च 2022 बरोज़ जुमेरात एक अजीम शान कुल हिंद संजीदा व मज़ाहिया मुशायरा मुनक़िद करवाया जा रहा है। मुशायरे में आलमी शोहरत याफ्ता मकबूल आम शायर मोहतरम नईम अख्तर खादमी साहब बुरहानपुर मध्य प्रदेश से और नौजवान खुश फिक्र व खुश ग्लो शायर मोहतरम नईम फराज अकुला महाराष्ट्र से तशरीफ ला रहे। मुशायरा जनाब प्रोफेसर जकी शत्तारी साहब सरप्रस्त आला बज़्म शायरी की सरप्रस्ती व सदारत में मुनक़िद होगा। नाज़िम व कन्वीनर मुशायरा डॉक्टर रज़ी शत्तारी बानी व सदर बज़्म शायरी होंगे। निजामाबाद और बोधन के शोरा भी मुशायरे में अपना कलाम सुनाएंगे। इंतजामिया बज़्म शायरी उर्दू दोस्त और बावजूद हज़रात से मुशायरे में शिरकत की गुजारिश है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर रज़ी शत्तारी शहर निज़ामाबाद में पिछले 12 सालों से बज़्म शायरी के नाम से एक ऑनलाइन ग्रुप चला रहा हूँ, जिसमें मुल्क भर के उस्ताद शोरा, मशाइख शोरा, इनके अलावा नौमश्क शोरा, नौजवान शोरा, उर्दू से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम शोबों के लोग, तमाम मज़ाहिब के, तमाम अक़ायद के लोग मौजूद हैं। 12 सालों से हम उर्दू अदब की खिदमत बज़्म शायरी के प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। 200 मुशायरों को मुकम्मल कर लिया है। ये हमारे लिए यकीनन एक एज़ाज़ की बात है। इस मौके पर अदब का ज़ौक़ रखने वाले और हमारे कई अहबाब का इसरार था कि एक मुशायरे का इनेकाद किया जाए। इसी ज़िमन में नेशनल हाई स्कूल में 24 मार्च 2022 बरोज़ जुमेरात शाम 9:30 बजे एक अज़ीमुश्शान कुल हिंद संजीदा व मज़ाहिया मुशायरे का इनेकाद करवाया जा रहा है। इस मुशायरे में आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब नईम अख्तर खादमी बुरहानपुरी साहब और नौजवान खुश फिक्र खुशगलू शायर मोहतरम नईम फराज साहब जो अकोला महाराष्ट्र से हैं, ये तशरीफ़ ला रहे हैं। इनके अलावा शहर निज़ामाबाद बोधन के मुख्तलिफ़ शोरा और एक खुसूसियत हमारी बज़्म की ये भी है कि हम यहाँ पर नौजवान बच्चों को शोरा का मुंतखब कलाम पढ़ने का मौका भी देते हैं, ताकि उनकी हौसला अफजाई हो और आगे चल के वो उर्दू की खिदमत करते रहें। तो इस तरह मजमूई तौर पर ये एक नौजवानों की महफ़िल और फिर कुल हिंद मुशायरा है। इस मुशायरे में तमाम बाज़ौक़ हज़रात को और उर्दू दोस्ती रखने वाले लोगों को मैं इस मुशायरे में शिरकत की गुजारिश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर डॉक्टर शोएब अहमद खान कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट व ट्रांसप्लांट फिजिशियन की आमद। गुर्दों के अमराज में मुब्तला मरीज इस्तिफादा करें। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर हर माह की पहली और तीसरी इतवार को गुर्दों के अमराज के माहिर डॉक्टर मोहम्मद शोएब अहमद खान मरीजों का मुआयना करेंगे। डॉक्टर शोएब अहमद खान हैदराबाद के मशहूर केयर हॉस्पिटल में खिदमत अंजाम देते हैं। डॉक्टर शोएब अहमद खान के पास हैदराबाद व बैरून ममालिक के गुर्दों से मुतासरा मरीजों की बड़ी तादाद इलाज के लिए रुजू होती है और डॉक्टर मोहम्मद शोएब अहमद खान ने अपनी माहिर सलाहियतों से कई
متاثرہ مریضوں کا علاج کامیابی سے کر چکے ہیں۔ سٹی ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل بودھن روڈ نظام آباد انتظامیہ کے مسلسل اصرار پر وہ نظام آباد میں ہر ماہ کی پہلی اور تیسری اتوار کو گردوں کے مرض میں مبتلا مریضوں کا معائنہ کریں گے، لہٰذا ایسے افراد جو گردوں کی عارضہ سے پریشان ہیں وہ قبل از وقت اپنا نام سٹی ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل پر رجسٹر کروا لیں تاکہ ڈاکٹر شعیب احمد خان کے معائنہ اور علاج سے استفادہ کر سکے۔ معائنے کے لیے فون نمبر 8598986666 اور 8578818578 پر نام رجسٹر کروائیں۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر شعیب خان، نیفرولوجسٹ، کنسلٹنٹ نیفرولوجسٹ، ٹرانسپلانٹ فزیشین، کیئر ہاسپٹل بنجارہ ہلز۔ میں نظام آباد کو تقریباً آلموسٹ لاسٹ 6 منتھ سے آ رہا تھا، لیکن اب جب یہ نیا ہاسپٹل جو انتظامیہ کمیٹی نے مجھے بلایا اور میں دیکھا یہ ہاسپٹل سٹی ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل، یہ ہاسپٹل میں آنے کے بعد ایسا محسوس ہوا جیسا کہ کوئی حیدرآباد کے کوئی بہت بڑے کارپوریٹ ہاسپٹل میں آگے سرکار۔ ایز اے نیفرولوجسٹ یہ ہاسپٹل میں ایوری فرسٹ سنڈے آف دا منتھ اور تھرڈ سنڈے آف دا منتھ آنے کا ارادہ ہے، اور ایوری ڈے بھی اگر کوئی چیز ہے تو آئی ایم اویلیبل آن کال، ویڈیو کال کر سکتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ، صرف کڈنی کے ڈیزیزز سے، اونلی کڈنی ریلیٹڈ پرابلمس۔ اسپیشلی اس کے سمٹمس کیا رہتے ہیں بولے تو اگر کسی کا یورین آؤٹ پٹ اگر کم ہو رہا ہے یا یورین میں جھاگ آ رہا یا یورین میں بلڈ آ رہا تو ڈیفینیٹلی آپ کو نیفرولوجسٹ کو بتانا ہے۔ سملرلی اگر آپ کوئی ٹیسٹ کرے کہیں، اسپیشلی آپ کو شوگر ہے، بی پی ہے، تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں یہ سب لوگ اپنا کڈنی فنکشن چیک کریں بائی چیکنگ دا کریاٹنین۔ اگر آپ کا کریاٹنین زیادہ ہے، مور دین نارمل 1.5 کے اوپر ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کو ایک نیفرولوجسٹ سے ملنے کی ضرورت ہے۔ سٹی ہاسپٹل پر ڈاکٹر شعیب احمد خان صاحب کی آمد کی وجہ سے میں ان کا شکر ادا کرتے ہوئے اور یہ اعزاز جو اللہ نے ہم کو دیا، میں اللہ بارک و تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ آج ہم کو بحیثیت سٹی ہاسپٹل کے مینجمنٹ میں رہتے ہوئے ڈاکٹر شعیب صاحب کی خدمات حاصل کرنے کا موقع ملا۔ یہ ہمارے لیے اور شہریان نظام آباد کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم ایک حیدرآباد کے ایک نہایت ہی بزی اور نہایت ہی جو ہے نا مصروف ترین ڈاکٹر صاحب سے وقت لیتے ہوئے اپنے نظام آباد کے شہریان کے علاج کے لیے یہاں تک بلانے کا ہم کو موقع ملا۔ قیام کے بعد سے اس ہاسپٹل کو مزید خدمات کا مرکز بناتے ہوئے تمام سہولتوں سے عوام کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے ہوئے ہم آگے چلیں گے، اور اس ہاسپٹل میں قیام میں جن احباب نے بھی ہم کو تعاون کیا ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے، خاص کر کے ببلو خان صاحب جو یہاں کے مقامی کارپوریٹر ہے، انہوں نے بھی اس ہاسپٹل میں ہم کو کئی طرح کی مسائلوں پر سامنے آ کر ان کا اپنا تعاون دیا۔ میں اس پر بھی انتظامیہ کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ لوگوں سے خواہش کرتا ہوں کہ یہاں پر بہت ہی کم قیمتوں پر علاج کی سہولتیں رکھی گئی، آپ استفادہ کریں۔ مدرسہ امدادیہ دارالعلوم بھیمگل میں عظیم الشان جلسہ۔ صدر مدرسہ جناب محمد سعادت علی صاحب کی اطلاع کے مطابق مدرسہ امدادیہ دارالعلوم بھیمگل میں ایک عظیم الشان جلسہ عام بعنوان دینی مدارس کی اہمیت و استقبال رمضان بتاریخ 22 مارچ 2022 18 شعبان المعظم 1433 ہجری بروز منگل بعد نماز عشاء بمقام مسجد نور و احاطہ مدرسے میں رکھا گیا ہے۔ اس جلسے میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے مفکر ملت حضرت مولانا محمد حسام الدین ثانی جعفر پاشا صاحب محتمم جامع اسلامی دارالعلوم حیدرآباد اور شہر نظام آباد کے مشہور عالم دین حضرت مولانا مفتی سید اکبر صاحب امام و خطیب جامع مسجد نظام آباد ناظم جلسہ حضرت مولانا مرزا خالد بیگ صاحب قاسمی ناظم مدرسہ دارالعلوم کندہ کرتی تشریف لا رہے ہیں۔ اس موقع پر مدرسے کے ناظم حافظ محمد سراج الدین صاحب اور اراکین کمیٹی و اساتذہ اور محمد عبد المعز صاحب ضلع کوآپشن ممبر، محمد انجم علی صدر انجمن کمیٹی بھیمگل، محمد عبد الرزاق صاحب کوآپشن ممبر، محمد زاہد حسین، محمد اظہر خان نائب صدر، حافظ نجیب معتمد، حافظ جلال الدین، حافظ ریاض الدین، حافظ تبریز، محمد مجاہد کوآپشن ممبر بابا پور نے عامت المسلمین سے درخواست کی ہے کہ اپنے دوست و احباب کے ساتھ کثیر تعداد میں اس جلسے میں شرکت فرمائے۔ خواتین کے لیے پردے کا معقول نظم رکھا گیا ہے اور تمام شرکاء اجلاس کے لیے تام کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
मदरसा इदादिया दारुल दिंगल के ज़ेर एहतमाम एक अज़ीम शान जलसा बउनवान इन्हीं मदारिस की अहमियत व इस्तक़बाल रमज़ान बतारीख़ 22 मार्च 2022 बरोज़ मंगल बाद नमाज इशा व मकाम मस्जिद नूर इहाते मदरसे में रखा गया है। इस जलसे में हज़रत मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन साहब सानी जाफ़र पाशा साहब मदज़िल्लाहुल आली महतमीम जामिया इस्लामिया दारुल उलूम हैदराबाद और शहर निज़ामाबाद के मशहूर आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अकबर साहब दामद बरकातहू इमाम व अखलाफ के अहबाब से हम पुरखुलूस गुजारिश करते हैं कि कसीर तादाद में इस प्रोग्राम में शिरकत फरमा कर उलमा इकराम के बयान से इस्तेफादा करें और जलसे को कामयाब बनाएँ। इल्ला रेड्डी में हजरत सैयद शाह अब्बास शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ जोश व खरोश के साथ मनाया गया। हजरत सैयद शाह अब्बास शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ बतारीख 19 मार्च मुताबिक 15 शाबान बरोज़ हफ्ते को मनाया गया। इस साल भी हजरत सैयद शाह अब्बास शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ उम्दा पैमाने पर मनाया गया, जिसकी ज़ेर निगरानी मुतवल्ली दरगाह जनाब गुलाम मोहम्मद महमूद अली साहब ने की। संदल का आगाज़ बाद नमाज ज़ोहर मुतवल्ली के मकान से बरामद होकर मुख्तलिफ मकामात से गश्त करते हुए तहसील ऑफिस पहुँच कर वहाँ से दरसगाह की तरफ मगरिब से क़ब्ल दरगाह शरीफ पहुँचकर मज़ार शरीफ पर चादर व संदल चढ़ाया गया, जिसके बाद तिलावत व फातिहा का शर्फ हासिल किया गया और सलाम का हदिया पेश किया गया। इस तकरीब में रुकन असम्बली मिस्टर एन सुरेंद्र ने दरगाह शरीफ पहुंचकर चादर पेश की, जिसके बाद तबरुक तकसीम किया गया, जिसमें कसीर तादाद में अवाम ने शिरकत की। शरीफ का मुबारक देते हुए आज संदल में आज के हमारा एलआरडी का महीना के बहन सब जने बहुत अच्छा निकाले और अल्लाह का जो भी है सबको मिला दुआ मिला सबको और सब अच्छा रहना, कोरोना दूर हो के सब जने खुशी रहना बोल के मैं अल्लाह से वो देख किया। कामारेड्डी जिले के एलआरडी मंडल के मुस्तखर पर सैयद शाह अब्बास शाह वली का उर्स मुबारक आज हुआ है, जिसमें जिला मजहब व मिलत के लोग शिरकत करे हैं। ये आस्थाना ऐसा है जो भी जायज़ तमन्ना यहाँ पर लेकर आएगा, ये आस्थाना में बिल्कुल उम्मीद के साथ ये पूरा हो रहा है, क्योंकि ये वलियों का एलआरडी है, 7 वली एलआरडी है, इसमें से तो वली है सैयद शाह अब्बास शाह वली रहमतुल्लाह अलैह। ये आस्थान ऐसा है इसमें जिला मज़हब के लोग हिंदू मुसलमान हर मज़हब का छोटा बड़ा यहाँ से गुजरता है, तो हजरत का यहाँ पर फैज़ लेकर जाता है। एक नजर वक्फे की ओर। हजरत सूफी कमाल का हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन, जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हादसे से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन है। फीस सिर्फ 51 रुपए। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। रेंजर मंडल कंदाकुर्ती देहात में एक शख्स ने की खुदकुशी। रेंजर मंडल कंदाकुर्ती गांव के एक होटल में काम करने वाले एक शख्स ने होटल के गोदाम में जाकर खुदकुशी करने के मुतालिक हासिल करदा इत्तला पर एसआई सायना फौरी मौके वारदात पर पहुंचकर खुदकुशी करने वाले नौजवान के बारे में मालूमात हासिल करते हुए इनके अहले खाना व रिश्तेदारों की जानिब से दी गई दरख्वास्त पर केस दर्ज करते हुए तहकीकात करने का इंकशाफ किया। शहर में मसलख की देखभाल करने के मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले सेकंड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर पर कार्रवाई करने का इकबाल अहमद नामी शख्स ने किया मुतालबा। जिले निजामाबाद के प्रेस क्लब में क़ियाम अमल में लाए गए सहाफ़ियों के इजलास में इकबाल अहमद नामी शख्स ने खिताब करते हुए शहर के मसलक की देखभाल करने के मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले सेकेंड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने का इजहार करते हुए बताया कि निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से 2021-22 के लिए एक मसलक कॉन्ट्रैक्ट
हासिल हुआ, लेकिन जानने वाले एक शख्स ने देखभाल के नाम पर लीज पर लेने के बाद 20 लाख रुपए अदा करने का वादा करते हुए धोखाधड़ी करने के अलावा एक पार्टी का नाम बताकर धमकी दे रहा है। इसी के अलावा एग्रीमेंट के तहत हासिल होने वाले 10 लाख रुपए रकम अदा न करते हुए स्लॉटर हाउस को ना कर धमकी देने वाले अजीम कुरैशी के खिलाफ कार्रवाई करने का इजहार किया। इन्होंने मजीद कहा कि 2022 में स्लॉटर हाउस के लिए टेंडर डालने वाले अजीम कुरैशी को डिफॉल्टर के तौर पर शिनाख्त करके टेंडर में हिस्सा न लेने के लिए इक़दाम करने की ख्वाहिश की। मोहम्मद इकबाल अहमद है, मैं बल्दिया से सिलेंडर हाउस का टेंडर लिया 17,05,000 को लेकर अजीम नामी आदमी को डेली 500 रुपये के हिसाब से देते आ रहा था डेली 500 रुपये के हिसाब से दिया। और बोला तो गई बदली कमेले कई को आते लिहाजा मैं 20,000 रुपये आपको देता हूँ, 20 लाख रुपये महीने को 1,66,666 रुपये देता हूँ बोल के मेरे को अग्रीमेंट करा। लिहाजा आज तक मेरे को पैसे ला के नहीं दिया। बल्दिया कमिश्नर साहब से गुजारिश है इसको घंटा मंगा दिया जाए। पार्टी का मीटिंग जो भी हमें देख लेना उनके धमकियाँ दे रहा है, जो करना है कर लो भाई, पैसे तो घुमाए लो बोल के बोला। माकलूर मंडल मदनपल्ली देहात में वाक़े सुभाष गार्डन तमाम अवाम की तवज्जो का मरकज बन गया। माकलूर मंडल मदनपल्ली देहात में वाक़े सुभाष गार्डन तमाम अवाम की तवज्जो का मरकज बन जाने के अलावा इस गार्डन में जिले के इतराफ एक नाफ में मुकीम अवाम राहत व सुकून की सांस ले रहे हैं और इसके अलावा महाराष्ट्र नांदेड़ से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की कसीर तादाद गार्डन में सुकून के लम्हात गुजार रहे हैं। इस मौके पर सुभाष गार्डन के मुंतज़मीन श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि इस गार्डन में तमाम उम्र वाले अफराद को खुशी के लम्हात फ्राहम करने के लिए स्लाइड्स और रेन डांस स्विमिंग का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी ने बालकुंडा हलक़े का दौरा करते हुए कई तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। रियासती वज़ीर इमारत और शोरा विमला प्रशांत रेड्डी ने दौरा करते हुए बालकुंडा हलक़े के दीगर इलाकों में संग बुनियाद और तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाते हुए पहले मरहले के तौर पर बालकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़े मौज़े में 50 लाख रुपए मालियती रकम से सीसी रोड से वाबस्ता तामीरी कामों का आगाज अमल में लाने के साथ साथ 10 लाख रुपए की मसारफ से मनूरकापुर संगम के साथ साथ 5 लाख रुपए लागती रकम से एससी माला संगम की इमारत से मुतालिका तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाते हुए किसान नगर देहात में 30 लाख रुपए मालियती रकम से सीसी रोड की तामीर से मुताल्लिक़ संग बुनियाद प्रोग्राम में शिरकत करने के अलावा मोपाल मंडल वेमपल्ली देहात में कई तरक्याती व संग बुनियाद प्रोग्रामों में शिरकत करने के साथ साथ 10 लाख रुपए लागत रकम से तामीर करदा दही कमेटी हॉल का इफ्तिताह अमल में लाया और इसी तरह से मोपाल मंडल के मौके पर 30 लाख रुपए मालियती रकम से सीसी रोड तामीरी कामों से मुताल्लिका राजी पर संग बुनियाद रखा। वानी मंडल सत्यनारायणपुरम देहात से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन से रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने मुलाकात करते हुए दिया पुरस्कार। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने दौरा करते हुए वर्नी मंडल के सत्यनारायणपुरम से ताल्लुक़ रखने वाले कायद अहमद के दामाद रोड हादसे में फौत होने की बिना पर इनके अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। इसी तरह से नासाज तबीयत के बाइस तकलीफ में मुब्तला वर्नी के साबिका सरपंच बी वेंकटेश्वरा राव के श्रीनगर गांव में वाक़े रिहाइशगाह में मुलाकात करते हुए इयादत की। इस मौके पर इनके साथ टीआरएस पार्टी से वाबस्ता डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी व कायदीन मौजूद थे। आर्मू मंडल अंकापुर देहात में क़याम अमल में लाए गए लालना ओल्ड एज होम का तेलंगाना के हाई कोर्ट चीफ जस्टिस विजय सेन रेड्डी ने किया मुशाहिदा।
तेलंगाना के हाई कोर्ट चीफ जस्टिस विजय सेन रेड्डी ने आर्मू मंडल अंकापुर देहात में क़याम अमल में लाए गए लालन्ना ओल्ड एज होम का मुशाहिदा किया। इससे कबल लालन्ना ओल्ड एज होम के मुंतज़िमीन ने तेलंगाना हाई कोर्ट चीफ जस्टिस विजय सेन रेड्डी का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि खिदमत खल्क के जज्बे के तहत लालन्ना ओल्ड एज होम मुंतज़िमीन की जानिब से फ्राहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। इस प्रोग्राम में SHO श्रीधर SI अंकापुर मौजे से वाबस्ता अवाम व दीगर ने शिरकत की। మీరు మా ఆశ్రమంకి రావాలి అంకుల్ ఎక్కడ కలిసి నా పెళ్లిలో ఎప్పుడు వస్తున్నావు జడ్జి అయిపోయినాక వస్తానని రాసిందేమో ఇవాళ రాజారెడ్డి గారే కాదు మొత్తం ఫ్యామిలీ చారిటీ స్పిరిచువల్ దీంట్లో పోయినారంటే నాకు ఆశ్చర్యమని అనిపించింది। క్రికెట్ అసోసియేషన్ కానీ లైబ్రరీ కానీ నడపాలంటే చాలా కష్టం। रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने जिले कामारेड्डी नसरुल्लाबाद रामलू गुट्टा तांडे में बरखे की शौक से फौत होने वाले कायद के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने जिले कामारेड्डी नसरुल्लाबाद मंडल का दौरा करते हुए रामूला गुट्टा टांडे में बरखे के शौक से फौत होने वाले साबिका MPTC के शौहर व कायद मेघावत रूप सिंह के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा देते हुए इजहार ताज़ियत पेश की। इस मौके पर इनके साथ TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में होने वाली तरक्याती कामों से मुतासर होकर एरगटला मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले 100 से ज़ायद नौजवानों ने रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। बालकुंडा हल्के में होने वाली तरक्याती कामों से मुतासर होकर एरगटला मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले मोदीराज दुर्गा मंदारी यादव यूथ SC यूथ से 100 से ज़ायद अफराद ने रियासती वज़ीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने पर इन्होंने पार्टी में शामिल होने वाले कायदीन को TRS पार्टी का खंडवा पहनाकर पुरजोर इस्तकबाल करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR की कामयाब तरीन क़यादत में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के तहत फ़ायदा पहुँचाने के बाइस अवाम व नौजवान मुतासर होकर TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का इजहार किया। కరెంటు కోసం మొత్తంగా నియోజకవర్గాన్ని మనం ఇవాళ 100% సక్సెస్ఫుల్గా ముందుకు తీసుకొని పోతా ఉన్నాం। సాగునీరు కావచ్చు, మంచినీరు కావచ్చు, కరెంటు కావచ్చు, ఎక్కడికక్కడ చెక్ డ్యామ్లు కట్టుకుంటున్నాం, ఎక్కడికక్కడ లిఫ్ట్లు పెట్టుకుంటున్నాం, SRS పునర్జీవ పథకం చేసుకున్నాం, కాకతీయ కెనాల్ని మంచిగా చేసుకున్నాం। నేను చెప్పిన దాంట్లో ఒక్కటి కూడా తప్పు ఉంటే నేను నా మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేస్తాను। ఈ సంజయ్ అరవింద్ వాళ్ళ MP పదవికి రాజీనామా చేస్తారా అని అడిగింది। 6 నెలల నుంచి అడుగుతున్నా నేను, దానికి సమాధానం లేదు। ఏమన్నంటే మళ్ళా గదే ఇక అటు తీసుకపోవడం ఇటు తీసుకపోవడం, ఏమన్నంటే ముఖ్యమంత్రిని జైలు వేస్తామను, లేదు మనం హిందువుల బిడ్డలము అంటూ ఇట్లా ఒక రకంగా కాదు। ప్రజాస్వామ్యం అనేది ఎన్నికలనేవి ఓట్లనేవి మన బావు కోసం, మన మంచి కోసం, మన కుటుంబాలు మంచిగా కావడానికి జరగాలి అంతే తప్ప ఏదో మాయ మాటలు చెప్పి ఏదో భావోద్వేగంలో తీసుకుపోయి ఇవాళ ఒక तेलंगाना के मसला जद्दोजहद व जंगजू मल्लू सोराजियम को मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता ने पेश की खराज अक़ीदत। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता ने तेलंगाना के मसला जद्दोजहद के जंगजू मल्लू सोराजियम को भरपूर खराज अक़ीदत पेश करते हुए इनकी जानिब से फ़राहम करदा खदमात को काबिल सताइश करार देते हुए बताया कि दूसरे मरहले के तेलंगाना तहरीक के दौरान मल्लू सोराजियम की जानिब से जारी करदा मुफीद सलाह व हिदायत पर अमल आवारी करने का इजहार करते हुए इनके अफराद ख़ानदान को इजहार ताज़ियत पेश की। कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चिड़ियों की हिफाजत करने का साबिक़ा सोशल वेलफेयर DEO जीवा मेमोरी चैनल मेमोरी ट्रेनर A जीवन राव ने किया इजहार। कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चिड़ियों के लिए घोंसले का क़याम अमल में लाने का साबिक़ा सोशल वेलफेयर DEO जीवा मेमोरी चैनल मेमोरी ट्रेनर A जीवन राव ने इजहार करते हुए बताया कि हर एक फ़र्द अपनी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी के तहत अपने घरों के इतराफ़ इकनाफ़ चिड़ियों का घोंसले का क़याम अमल में लाकर चिड़ियों को रोज़ाना पानी व सही ग़िज़ा देते हुए हिफाजत करने का इजहार किया। ज़िले निज़ामाबाद के अहल उम्मीदवार पुलिस कांस्टेबल व SI मुफ्त ट्रेनिंग के लिए ऑनलाइन में नाम दर्ज करवाने का कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागराजू ने किया इजहार। ज़िले निज़ामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागराजू ने सहाफ़ती बयान में बताया कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अनक़रीब बड़े पैमाने पर पुलिस कांस्टेबल तक़र्रुरात से मुताल्लिक़ नोटिफिकेशन जारी करने के पेश नज़र ज़िले निज़ामाबाद में क़ब्ल अज़ वक्त अहल उम्मीदवारों के रियासती
वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के जेर निगरानी में मुफ्त पुलिस ट्रेनिंग दी जाएगी। लिहाजा आज से इस माह की 25 तारीख तक अहल उम्मीदवार ऑनलाइन पर दरख्वास्त दाखिल करने का इजहार किया। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम खबर। महकमे बल्दी की इजाजत के बिना बोधन में एक मुजस्मे की तनसीब पर दो फिरकों के माबैन तनाजा, पुलिस पर पथराव, पुलिस में कर्फ्यू नाफिज, कमिश्नर ऑफ पुलिस किया नागराजू। बांसवाड़ा व वर्नी मंडल के दीगर मौजूआत में हाल ही में फौत होने वाले अफराद खानदान से रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। चीफ मिनिस्टर केसीआर की कामयाब तरीन क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले तरक्याती स्कीमों से मुतासर होकर एरगटला मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी व कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। बालकुंडा हल्के में रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने दौरा करते हुए जुमला 4 करोड़ रुपए मालियती रकम पर मबनी तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। जिले निजामाबाद के अहल उम्मीदवार पुलिस कांस्टेबल व एसआई मुफ्त तरबियत से इस्तीफादा करने की कमिश्नर ऑफ पुलिस किया नागराजू ने की ताकीद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।